This is session 16, part of our Basha series, and it gives me really great pleasure now to invite to the stage to discuss Naman, homage to a storyteller, C.P. Deval, Mahmood Farooqi, Arjun Dayacham, Prahlad Shekhawat and Irfan Khan, all in conversation with Marshall Love. Thank you very much. अरे मालूम है ना Good afternoon, everyone. Very welcome to this special afternoon session, which is Naman, a homage and a tribute to one of the greatest writers from Rajasthan, Vijay Dandeta. He passed away a little while ago. We've missed him for the last year or more. We've remembered him with great gratitude in our hearts. Everyone who has known Rajasthan has something wonderful to say about Vijay Dandeta, who was popularly known amongst people here as Biji. So when you hear references to Biji, it means the same person to whom this session is dedicated, Shri Vijay Dandeta. What is it that he did for Rajasthan which was so spectacular, so wonderful? So we remember Biji with great gratitude. What he did manage very beautifully is to collect the folklore of Rajasthan, the folk tales, put it together in a multi-volume collection which is called Batari Phulwari. And it is this collection which partly contains original tales that he was able to gather, but he also tweaked them. And as he put them into his own kind of language and mold, he did change them a little, but he kept the essence of it in the original. And you will find, if you read the original in Rajasthani or in Hindi, it has a kind of an encouraging voice. It starts with homage to the gods. It talks to the plants, the trees, the animals. It is a very, very composite culture and a composite community that Biji addresses. He lived in a small village called Barunda, and it is this village which people did not know about, which by the time he became an octogenarian and a very known writer, was something that the international literary community began to recognize as the center of folk tales and the oral tradition of Rajasthan. We have a very large panel here, so I will stop for now with this very, very brief introduction and request the speakers here to present their own homage to Biji. Irfanji, if I may begin with you. Deval Saab se shuru karte hain. Deval Saab, of course, is an extremely well-known writer from Rajasthan, and he has known Biji very closely. So Deval Saab, aap bataएं. नमस्कार। सबसे पहले तो राजस्थान में हमारे लोक कथा कहने का जो रिवाज है, उससे पहले एक चीज कही जाती है जिसे छोगा कहते हैं। वो छोगा इसलिए कहा जाता है कि जो सुनाने वाला है, कथा कहने वाला है, वो सुनने वाले को अलर्ट कर दे, उसे अट्रैक्टिव कर दे। ठीक इसी तरह के कुछ छोगे विजय दानदेता ने जब अपनी बातारी फुलवारी शुरू की, तब शुरू में जैसा उन्होंने सुना वैसा का वैसा लिखा। तब तक उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ सुनी हुई कथा को जस का तस लिख देना और उसे सिर्फ भाषा का कलेवर दे देना था। लेकिन मैंने अपने इस बात को कहना मैंने एक नए छोगे से लेकर के आया था, लेकिन समय नहीं है तो वो छोगा तो मैं आपके नहीं पढ़ रहा हूँ। पर विजय दानदेता ने
चलिए तो विवेकानंद देता ने कई नए छोगे भी बनाए। स्वागत साईं, स्वागत राम, स्वागत पूजा, स्वागत धाम, कैसा दोस्त और कैसा भाई, कैसी बहन और कैसी भौजाई, कहाँ मुल्क और कहाँ मलाई, चूक उछाले मिले मलाई, कैसी माँ और कैसा बाप, सब है मतलब का संता, धर्म धर्म की बातें झूठी, अपने दाने अपनी मुखी, खट दर्शन का खोटा ज्ञान, छोटी माला छोटा ध्यान, झूठी प्रीत और रूखा गे, किसका घर और किसकी गे, भजन साथी हेरी हरजस तीर हराहल, तेरे तर्कस सूने मारक सूने पंथ, उजले वेश और काले संत, तो परम परम का छेहन पार, चरम चरम का बेजा भार, धर्म धर्म की टेढ़ी मार और करम करम की झीणी कार, और मरम मरम की गहरी मार, और ये धर्म धर्म जीवे संसार, तो भगवान सूरज की ठोर न छुड़ाए तो सभी बातें भली होंगी कि 20वीं शताब्दी के 26वें वर्ष के रहते चूना पत्थर के कोठारों में बसा एक गांव बोरुंडा में एक बच्चे ने जन्म लिया, जो जन्मते ही एक हाथ फूंक मारकर रोया नहीं, उसने जन्मते ही कहानी कहनी शुरू की, और जब तक वो मरे उससे 3 वर्ष पहले तक। तो हुआ क्या कि उनकी एक कहानी चौबोली को, कुछ कहानियों को एक अमेरिकी स्कॉलर क्रिस्टी मेरिल ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया उनके बेटे कैलाश कबीर की मदद से। फिर वो कथा ने उसको छापा चौबोली एंड अदर स्टोरीज की मदद से। तो मैंने चौबोली पहली बार अंग्रेजी में पढ़ी उस ट्रांसलेशन में, फिर मैंने चौबोली के उस अंग्रेजी ट्रांसलेशन से उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जबानी सुनाने के लिए। तो पिछले साल मैं मिशिगन गया था, तो इत्तेफाक हुआ क्रिस्टी मेरिल के साथ बैठ के वो कहानी कहने का और पूरे प्रोसेस के साथ गुजरने का। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि एक लोक कहानी पहले लिखी जाती है राजस्थानी में, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट होती है, फिर वो 7 दुनिया 7 समुंदर पार घूम के यहाँ आती है, उसको उर्दू में करके फिर हम लोग हिंदुस्तान भर को सुना रहे हैं उसे। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने पेश करूँ। बहुत लंबी कहानी है, और वैसे दास्तान में इसे ना कहा जाए तो बेहतर है, कि दास्तान में जरा खर्चा पानी लगता है, यहाँ मुफ्त का काम हो रहा है। तो मैं टुकड़ा सुना देता हूँ। गुरुदूरा कशाने आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि श्री भगवान राम की कृपा बनी रहे, ताकि चौबोली की ये दास्तान बारंबार सुनाई जाती रहे, और हर युग और हर दौर और हर मुल्क और हर खित्ते में इस दास्तान को सुनने वाले और सुनाने वाले पैदा होते रहे। तो ये दास्तान शुरू होती है राजस्थान के एक ठिकाने के एक बहुत बड़े ठाकुर से, जिनकी अपने ठिकाने पे बहुत बड़ी हुकूमत थी। ठाकुर साहब अपने जमाने के बहुत शूरवीर परमवीर योद्धा, निशानेबाज, तीरंदाज मशहूर थे। गर्मी जाड़ा बरसात हर सुबह बिना नागा अपनी तीरंदाजी की मश्क करते थे, और मश्क ऐसे करते थे कि रोज सुबह अपनी ठकुराइन को उठा के उनका हाथ पकड़ के छत पे ले जाते थे, उनको खड़ा करते थे, फिर 108 कदम दूर गिन के जाते थे, और कमान साथ के जो तीर छोड़ते थे तो तीर जन जन दन दन करता हुआ सीधा ठकुराइन की नथ के आर पार निकल जाता। तीर के साथ ठकुराइन मौत को आते और गुजरते देखा करती, और ठाकुर साहब के 108 तीर अपने निशाने को भेदते हुए सीधे आर पार निकल जाते। अब साहब डर और चिंता, गम और परेशानी सब अनाजों में भारी है। तो ठकुराइन बेचारी दिन ब दिन घुलती जाती, गोरा रंग झुलस के काला पड़ गया, दाना पानी जिसम को लगना बंद हो गया, कानों में गूंजती रहती, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, पर ये रोज रोज का 108 बार मरना कौन बर्दाश्त कर सकता था भला। तो कई बार ठकुराइन ने सोचा कि इशारों कनायों में ठाकुर साहब से कहें कि मैं बेचारी बेकार सी औरत, मैं तुम्हारी इस मश्क के काबिल नहीं हूं। पर ठाकुर साहब जब भी ये सुनते अकड़ के कहते, क्या बात करते हो, हम इतने बड़े ठाकुर हैं तो तुम हमारी बड़ी ठकुराइन हो, अदना कैसी हो, तुम्हारी मश्क से तीर निकालना हमारा काम है। अब साहब बड़ी औरतन का तो काम ही यही है कि अग्नि के समक्ष 7 फेरे ले चुकी हैं, तो मर्दों के सामने चुपचाप घूंघट काट के बैठी रहे। एक दिन क्या हुआ कि उस ठिकाने के मैनेजर की भतीजी वहां आई, उसने ठाकुराइन को देखा कि एकदम हालत पतली है, कहने लगी जीजी क्या बात है। अब जब किसी ने हमदर्दी जाहिर की तो ठकुराइन का मन पिघल गया, उन्होंने सारी व्यथा अपनी जाहिर कर दी। जब भतीजी ने यह सुना तो कहा, जीजी मेरा शौहर अगर ऐसा करे तो मैं तो उसे घोड़े का चारा खिलवाऊं, पैर का धोबन पानी पिलवाऊं, और उसकी मुश्कें कसवा के मसहरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगवाऊं।
पर ठकुराइन की इतनी हिम्मत कहाँ कि ठाकुर साहब से ये बात कह सकें। एक दिन क्या हुआ कि पूस का महीना था, कड़ाके की सर्दी थी, पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आबोताब से जलवागर था। ठाकुर साहब रंग महल में दाखिल हुए, निखरी निखरी चांदनी उन्होंने देखी तो उनके मन में ये मासूम सा ख्याल आया, हाय इस चांदनी रात में अगर नथ से तीर निकाले जाएं तो क्या बुरा है। अब साहब ख्याल आ गया तो ठहरना कैसा, लपक के अपनी ठकुराइन के पास गए, उनसे फौरन दिल की मंशा जाहिर की। ठकुराइन जो लिहाफ में दुबकी हुई थी और अंदर दुबक गई। उसने कहा भाई दिल में ख्याल आया कि भाई माना के दिन के निशाने में रोशनी में इनका निशाना कभी नहीं चूका था, पर रात तो रात है, भले चांदनी रात हो पर रात की गारंटी कौन ले। और चांदनी रात क्या इसलिए होती है कि नथ से तीर निकाले जाएं? चांदनी रात होती है कि दिल दिल से बातें करें, नजरें नजरों का शिकार करें। एक चमेली के मंडवे तले दो बदन चांदनी रात में जल गए और ये मर्दुआ चांदनी रात का इस्तेमाल नथ से तीर निकालने के लिए करना चाह रहा था। अब ठकुराइन से रहा न गया, उन्होंने अपनी दिल की बात जाहिर कर ही दी। ठाकुर सांस उनकी और बिफर गए, कहने लगे अरे एक राजपुतानी हो के बुजदिली दिखाती हो, चलो उठो। अभी खींच के उसे लपक के ले गए, वहां खड़ा किया और जो तीर छोड़ा कमान से तो जन जन दन दन नथ के आर पार। अब ठकुराइन के सब्र का पारा बिखर चुका था। उन्होंने जो है भतीजी की सारी बातें ठाकुर के सामने कह दी और ये कह के कहा जी मैं नहीं वो कह रही थी। ठाकुर साहब ने सुना तो उनको यकीन नहीं आया कि उनकी इतनी मासूम और खूबसूरत सी आदत का कोई मजाक उड़ा सकता है इस तरह। उन्होंने कहा कहाँ है वो बदतम्माश औरत, हम अभी जाएंगे उससे शादी करेंगे और उसकी नथ से 208 तीर निकालेंगे। साहब वो पहुंचे वहां मैनेजर के घर पे, मैनेजर ने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी, सारे खानदान ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। पर ऐसी दुनिया तो ऊपर वाले ने बनाई नहीं है कि बड़े लोग छोटों की गलतियों को माफ कर दें। जब कुछ समझ में ना आया तो मैनेजर ने कहा अन्नदाता आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, उसके माँ बाप तीर्थ यात्रा पे गए हैं, वो आ जाएं तो पूछ के बताता हूं। इस पे तो ठाकुर साहब और गुस्सा हो गए, कहने लगे क्या बात करते हो, हम इस रियासत के क्या लगते हैं? कहने लगे माई बाप लगते हैं। हम इस लड़की के क्या लगते हैं? जी माई बाप लगते हैं। अबे तो जब हम बाप बेटे होते हुए कह रहे हैं कि इसकी शादी हमसे करा दो तो तुम भी इसमें बोलने वाले कौन हो? अब हैरत की बात थी कि भतीजी को इस पे कोई एतराज नहीं था। उसने कहा हाँ मैंने कही थी करवा दो मेरी शादी। तो ठाकुर साहब ने फौरन पंडित बुलवाया, आदमी के समक्ष 7 फेरे लिए और फौरन उसको घोड़े पे बिठाया और अपने महल की तरफ वापस चल दिए। चांदनी रात खत्म होने में जरा देर बाकी थी और वो चांदनी रात को जाया नहीं करना चाहती थी। तो जब उन्होंने चौबोली को भतीजी को ले जाके वहां खड़ा किया और नथ से तीर निकालने लगे तो उसने कहा ठाकुर साहब ये कौन सी बड़ी बात है, तुम नथ पहन के यहां खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी नथ से 1008 तीर निकाल देती हूं। ठाकुर साहब को अपने कानों पे विश्वास ना हुआ, कहने क्या बात कर रही है, इतनी बड़ी आदत इतनी बड़ी मश्क को ऐसा छोटा बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हो जाता हूं। फिर मन में उनके विश्वास पैदा हुआ कि इसने जानबूझ के तीर इधर का उधर चला दिया तो मैं तो जान से चला जाऊंगा। लेकिन नहीं, तीर चलाना मर्दों का काम है, हम तीर निकालेंगे तुम्हारी नथ से, तुम यहां खड़ी हो। तो भतीजी ने कहा मैं खत्म कर रहा हूं, ठाकुर साहब अगर कोई बहुत बहादुरी जियालेपन का काम करना चाहते हो तो जाओ शहजादी चौबोली का हाथ जीत के दिखाओ। चौबोली ने कसम खाई है कि वो उसी से शादी करेगी जो उसे एक रात में 4 बार बुलवाएगा, और जो ना बुलवा पाया वो तहखाने में उकड़ू बैठा घोड़े के चारे के लिए चक्की पीसेगा। अगर चौबोली का हाथ जीत के लाओ तो मैं जानूं कि मेरा शौहर बड़ा सूरमा जियाला है। ठाकुर साहब ने उसी वक्त मूंछों पे ताव दिया और चौबोली के नगर की ओर चल दिए। बाकी कहानी आप टिकट लगा के देखिएगा। बहुत खूब, बड़ा मजा आया सुन के। अर्जुन देव जी आप कुछ अपनी तरफ से जी नमन विजी को। विजयदान देथा राजस्थानी के सबसे बड़े कहानीकार माने जाते हैं, रहे हैं। उन्होंने राजस्थानी भाषा को एक विशेष रंगत प्रदान की। असल में विजयदान देथा का कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने सामूहिक स्मृतियों को वैयक्तिक चेतना के साथ रचा। यह बहुत ही जटिल काम होता है। एक व्यक्ति लेखक जब लिखना शुरू करता है तो उसके पास अपनी स्मृतियां होती है, लेकिन लोक साहित्य जो है वो सामूहिक स्मृतियों को रचता है। तो विजयदान देथा के सामने चुनौती यही थी कि रचना तो सामूहिक स्मृति को है ताकि वो सामूहिक लोगों तक पहुंच पाए और वो उनका हिस्सा बने, लेकिन लिखना एक रचनाकार को है तो उसमें रचनाकार का अपना कम से कम झलकना चाहिए। जहां
फारूकी साहब ने कथा खत्म की है, असल में चौबोली की कथा वहां से शुरू होती है। ये तो पूर्व रंग है नाटक में जिसे हम कहते हैं, कहानी वो नहीं है। लेकिन अगर विजयदान देथा के कंट्रीब्यूशन को हम देखें, राजस्थानी में और भी कई लोगों ने राजस्थानी लोक कथाओं को लिखने का काम किया है, लेकिन अधिकांश के यहाँ वहां लिखना सिर्फ अर्जी नवीशी का काम रहा है कि उन्होंने सुना और उसको ज्यों का त्यों रच दिया। लेकिन विजयदान देथा उसमें अपनी लेखकीय क्षमता का उपयोग करते हैं और उसको बुलवाते हैं। मैं उसे कहता हूं उन्होंने लोक कथा के मौन को तोड़ा। जैसे चौबोली की कथा है जिसने एक कसम ले रखी है कि मेरे मौन को कोई एक रात में 4 बार तोड़ दे, 4 बार मुझे बोला दे तो मैं उससे विवाह करूं। तो लोक कथा के साथ भी यही था कि आजादी के बाद हमारा जिस तरह से सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास होने लगा तो लोक कथाएं हाशिए से भी बाहर चली गई। विजयदान देथा ये महत्वपूर्ण काम करते हैं कि वो उस लोक कथा को जो सुप्त हो गई थी, जो चुप हो गई थी, उसे वापस मेन स्ट्रीम में लाते हैं। चाहे वो दुविधा हो, दुविधा कहानी वैसे तो ग्रामीण अंचल में इकात्रेरो ताव उतारनी बात है, यानी अल्टरनेट डेज पे जो बुखार चढ़ता है उस बुखार को उतारने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में वो कथा सुनाई जाती है और अंत में कहा जाता है जैसे बुखार, जैसे भूत इस स्त्री को छोड़ के गया वैसे बुखार इस मरीज को छोड़ के जाए। लेकिन आप जब वो कथा सुनते हैं, आप जब वो कथा पढ़ते हैं विजयदान देथा की, तो आपको वो स्त्री जाति की दुख की कथा सुनाई पड़ती है। आपको वो एकांतरे के ताव की एक अनुष्ठानिक कथा नहीं लगती। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो उस कहानी को जो एक अतीत का हिस्सा हो चुकी थी। देखिए, परंपरा का अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि जो चीजें रुक गई है उसको उस रूढ़ी अर्थ में प्रयुक्त किया जाए। परंपरा का अर्थ ही ये होता है कि हम उसे निरंतर प्रवाहमान रखें। इसलिए परंपरा हमेशा वर्तमान का हिस्सा बन के रहती है। और विजयदान देथा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो राजस्थानी लोक कथाओं को वर्तमान में वापस प्रतिष्ठित करते हैं और वो आज के समाज को, आज के वर्ग को, आज के लोगों को लगता है कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है। ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत से लोग ये काम कहते हैं, ये कहते रहते हैं कि ये तो संकलन है, लेकिन संकलन का काम और भी कई लोगों ने किया है। चौबोली की कथा जो अभी फारूकी साहब ने कही, उसको बहुत से लेखकों ने लिखा है। अगर आप कन्हैयालाल सैल की कथा पढ़ें तो वो तो कथा वहीं से शुरू होती है जहां से चौबोली बोलेगी। ये जो भूमिका बनाई जिसमें एक चुनौती है, एक व्यक्ति को एक स्त्री द्वारा दी गई चुनौती है, और आश्चर्य की बात यह है कि ठाकुर उसमें सफल नहीं होता है। विजयदान देथा के यह ठाकुर असफल रहता है, कैद कर लिया जाता है, और वही लड़की जो उसकी विवाहिता बन के आई है, वही लड़की पुरुष वेश धारण करके जाती है और चौबोली को 4 बार बुलाती है। तो स्त्री वर्ग की विजय को विजयदान देथा इस तरह से स्थापित करते थे। और जैसा सीपी साहब ने कहा कि ये जो श्रेष्ठी वर्ग है, उस वर्ग का जो अहंकार है कि हम ही समर्थ हैं, हम ही कुछ कर सकते हैं, ज्ञान भी हमारे पास ही है, विजयदान देथा अपनी रचनाओं में उस अहंकार को बार बार तोड़ते हैं। वो हमेशा गरीब तबके के, निचले तबके के लोगों को नायक बना के लाते हैं। उनका तीडो राव बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वो एक सिंपल रेजा बनने वाला व्यक्ति है, और जो अपनी अबोधता में, विजयदान देथा का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो मनुष्य की अबोधता को प्रतिष्ठित करते हैं। हम आज के युग में इतने चालाक चतुर हो गए हैं, और जितने ज्यादा पढ़ते हैं, जितने ज्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं, उतने ज्यादा चालाक होने लगते हैं। विजयदान देथा उस लोक के वर्ग को लाता है जो आज भी अपनी अबोधता में अपने जीवन का सार तत्व मानता है। हम आज इस युग में बार बार उस अबोधता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई रचनाकार जब उस मन को, उस अबोध मन को हमारे सामने प्रकट करता है तो वो हमारे मन को छू जाता है। विजयदान देथा वही काम, ये बहुत मुश्किल काम है एक लेखक के लिए, उस अबोधता में लौटना, क्योंकि चालाकी चतुराई तो सबके सामने,
और हमारा जो शिक्षा तंत्र है वो हमको उस सारी चालाकियों के बरक्स लेके जाता है, उसमें उस अबोधता को प्राप्त कर लेना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और विजयदान देथा ने उस अबोधता की प्रतिष्ठा अपनी रचनाओं के माध्यम से की। मैं ऐसे विराट व्यक्तित्व को यहां इस मंच से अपना नमन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि विजयदान देता गांव में, विलेजेस में फोकलोर के बारे में इतना कुछ उन्होंने लिखा है, एंड इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी व्यू, इट्स नॉट द टूरिस्ट राजस्थान and the tradition that you've all been talking about, bringing the audience into the discussion. I think this session is also doing it because I can hear all the hunkar जो आपको audience से मिल रहा है। इरफान साहब, आपका तो जयपुर से काफी संबंध रहा, आप आगे बोलें कि आपको विजयदान देता के विषय में आपको कुछ। मेरा जयपुर से संबंध रहा, लेकिन मेरा जोधपुर से, जोधपुर में भी मेरे रिश्तेदार हैं। एक बार मैं जोधपुर में शूटिंग करने गया हुआ था, तो वहाँ मेरे मन में आया कि मैं बिजी से जाके मिलूं। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, लेकिन मेरा मन किया कि मैं जाके मिलूं। तो मैंने वहाँ किसी से पता लगाया कि कैसे मिला जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ से हम कार लेंगे और चले जाएंगे। और इत्तेफाक की बात है कि मैं जा रहा था, रास्ते में जो रास्ते में मुझे ले जा रहे थे उन्होंने मुझे कोई कहानी सुनाई राजस्थान के बारे में, और वो कहानी का जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ, तो एनएसडी से निकले हुए मुझे कई साल हो गए थे, लेकिन कहानी का महत्व क्या होता है और कहानी कितनी एक्सप्लोजिव हो सकती है और कहानी कितनी विस्फोटक हो सकती है, उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ। और उस दिन मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ कहानी को कहने का, मेरा और कोई फंक्शन नहीं है एज एन एक्टर। ये मुझे एनएसडी में पढ़ाया गया था, लेकिन उतनी इमीडिएट तरीके से मुझे कभी लगा नहीं था। मुझे बम की तरह उसका एहसास नहीं हुआ था, जैसे कोई फट गया हो कुछ चीज़ और मेरी चीज़ कुछ समझ में आ गई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। पता नहीं उनके रास्ते में कुछ ऐसी हवा है, कुछ ऐसा फैला हुआ है उनके एरिया में कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैंने उनके बारे में सुना है कि जब वो बच्चे थे 4 साल के, तो उनके पिताजी को, उनके चाचा को की हत्या हो गई थी, और जब उनको दिखाया गया तो उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े उन्होंने देखे थे। तो 4 साल के बच्चे के ऊपर अपने चाचा को और अपने पिता को इस तरह से देखना, उसके मन में क्या क्या गुजरा होगा, ये हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे कई बार लगता है कि हो सकता है प्रकृति जो है उनको ठोक बजाकर कुंदन बनाने की कोशिश कर रही हो। और उनका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और एज एन आर्टिस्ट उनका जो एक डिसीजन था, एक जो निर्णय था, वो कमाल का था कि राजस्थानी में जब उन्होंने लिखना शुरू किया, उस वक्त राजस्थानी को भाषा की भी कोई दर्जा नहीं था, हिंदी में ही लिखा। अब आज भी नहीं है, आज भी, लेकिन उनकी वजह से काफ़ी कुछ हो गया है। तो उस टाइम पे उनका ये डिसीजन कि मैं तो राजस्थानी में ही लिखूंगा। और क्यों लिखूंगा? क्योंकि मेरी अभिव्यक्ति वो प्योर होगी अगर मैं राजस्थानी में लिखूंगा। तो ये और जबकि पाठक नहीं था, राजस्थानी लिटरेचर को कोई पाठक ही नहीं था, ना पाठक है ना पब्लिशर है, और आदमी ये डिसाइड करता है कि मैं, क्योंकि मुझे अभिव्यक्ति के बारे में उनका कंसर्न है कि जो मुझे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, वो राजस्थानी चूज करते हैं। वो अपने आप में बहुत कमाल का डिसीजन था। और उनको लगता था कि आदमी कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी लैंग्वेज में लिखे, लैंग्वेज उतनी ज़रूरी नहीं है, अभिव्यक्ति अगर सही है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। उनके पास चिंगेज़ आत्मतों की एग्जाम्पल थी, उनके पास रसूल की एग्जाम्पल थी। तो ये डिसीजन मुझे उनका बहुत कमाल का लगता है। और उनकी जो, जैसे आपने कहा कि कहानियों को, लोक कथाओं को खोल दिया, मुझे लगता है उसको आज़ादी भी दे दी कहीं ना कहीं। एक सिंगल डायमेंशनल जो स्टोरीज थी लोक कथा, जिनका फंक्शन था एक गांव में सिंगल डायमेंशनल, उसको मल्टी डायमेंशनल उन्होंने बना दिया। इसलिए उनकी कहानी जो है वो बीज जैसी पुरानी भी लगती है और फल जैसी नई लगती है। डूबते सूरज जैसी पुरानी लगती है, उगते सूरज जैसी नई लगती है, या समंदर जैसी पुरानी लगती है, बादल जैसी नई लगती है। इसमें इस तरह का सामंजस्य है उनकी कहानी में। और जब अंत में उनके देहांत के 4 साल पहले उनके टांग में फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद उनकी याददाश्त थोड़ी चली गई थी, तो सबको इंतज़ार था कि उनकी याददाश्त लौट आए। तो कुछ सालों में उनकी जब याददाश्त लौटी तो वो कहते थे कि ऑथर का युग जो है ख़त्म हो गया है, अब एसएमएस का युग शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि हमारी इच्छा है, कामना है कि वो एक बार कम से कम झूठ साबित हो जाए। जी जी आमीन।
एक छोटी सी कुछ 4-5 लाइनें हैं उनकी लिखी हुई जो मुझे पसंद है, मैं पढ़ना चाहता हूं उनको। किसी कहानी का हिस्सा है वो। इसमें गडरिया कहता है राजा से कि आप काहे के राजा हैं, बिना इत्तला किए एक रात भी बाहर नहीं रह सकते। मैं एक नाखुश गडरिया सही, लेकिन मैं हूं अपनी मर्जी का मालिक। जहां मन किया सो लिया, घर गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया, समूची कुदरत ही मेरा घर है। फिर एक दड़बे में सर क्यों घुसाऊं? ये झरने, ये दरख्त, ये पहाड़ियां, ये आकाश, ये सूरज, ये पंछी मुझे पग पग न्योता देते हैं, ठोर ठोर ठहरने की मनमार करते हैं। फिर एक खोम है जिसे आप घर कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी क्यों बिताऊं? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक एक तारे को पहचानता हूं, एक एक वनस्पति को जानता हूं, माटी के एक एक कण की मुझे जानकारी है, पंछियों की बोलियों का मुझे ज्ञान है, जानवरों के स्वभाव की परख है, चांदनी और अंधेरे का रेशा रेशा पहचानता हूँ, बादल, बिजली, हवा, पानी की और कोई हरकत मुझसे छिपी नहीं है। जो कुदरत को पहचानता है वही उसका आनंद उठा सकता है, इसके सिवा आदमी को और क्या चाहिए। वाह, बहुत सुंदर पैसेज आपने चुना और सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं अब प्रहलाद जी से कहूँगी कि वो अपनी कुछ आइडियाज़ हमें बताएं विजी के बारे में। और आपने तो अल्टरनेट थिएटर पे बहुत काम किया है, लेखक भी हैं, आप बताएं। सबसे पहले तो इतनी अपार भीड़, इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नमन है। आपको बधाई। जैसे राजस्थानी में कहते हैं राम राम सा घनी खम्मा, हमारे शेखावाटी में कहते हैं जय गोपीनाथ जी की। और जो मेरे दादी सा, जिसको मैं बूजी कहता था, हम आपस में कैसे एक दूसरे को ग्रीट करते थे। तो बड़े थे तो ढोक लागू बूजी, उससे पहले वो अपने हाथों में गले लग लेते, लेकिन उसको गला लगना नहीं कहते थे, वो कहते थे भाया आजा मारा कलेजा सू लाग जा, कम एंड जॉइन विद माई हार्ट। और फिर मेरे से पूछते थे कि राजस्थानी भाषा की विविधता के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। फिर बूजी मेरे से कभी कभी उनके आंख में आंसू भी आ जाते थे, क्योंकि काफ़ी समय बाद उनसे मिलता था। और फिर मुझसे पूछते थे भाया थारो जी सोरो है ना, जी सोरो, ये आज राजस्थानी में भी ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। जी मतलब जी आपका स्पिरिट, सोल, हेल्थ, मन, माइंड सबको मिला के, और सोरो मीन्स वेल बीइंग, वेल। तो ये जी सोरो है ना भाया, और एक इतना अफेक्शन से, इतना स्नेह से, आंखों में आंसू लेके, ये है राजस्थानी या किसी भी भाषा अलग अलग की विविधता में जो रिचनेस होती है, अलग अलग अनुभवों को अभिव्यक्ति करने की नए नए तरीके से। यही कारण है विजयदान देता हिंदी में भी उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, उनको कुछ सक्सेस भी मिली, अवार्ड्स भी मिली, लेकिन एक चौराहे पर आके वो रुक गए और उन्होंने कहा मेरी आत्मा क्या कहना चाहती है, मेरे जो सबसे गहरे अनुभव हैं वो मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। फिर उन्होंने निर्णय लिया, जैसे इलवाब ने कहा कि वो सिर्फ राजस्थानी से हो सकता है, नहीं तो मैं हरदम मीडियोकर राइटर रहूँगा। मैं चाहे मेरे को दुनिया सक्सेस दे, लेकिन मेरे मन में कुछ बातें रहेंगी। फिर उसके बाद दूसरा निर्णय उनको लेना पड़ा, क्योंकि शहरों में जो राजस्थानी भाषा है वो अलग तरह की हो जाती है और रहन सहन भी अलग हो जाता है। तो उन्होंने दूसरा निर्णय लिया कि मैं गांव में जाके रहूँगा, बोरुंदा में, और भाषा को लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से नहीं पनपती, उसकी रिचनेस मिलती है गांवों में। जो अनपढ़ लोग हैं वो जो प्रोवर्ब्स, एनेक्डोट्स, मुहावरे, खासकर महिलाएं को वो बहुत सुनते थे, उससे एक भाषा की
विविधता, रिचनेस, नए नए अनुभव कहने के तरीके हो रहे हैं। दूसरा बात, उन्होंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा, रशियन राइटर्स, इंग्लिश राइटर्स, शरद चंद्र, टैगोर और अलग अलग विचारों को भी पढ़ा। उससे एक वर्ल्ड व्यू, एक दुनिया के बारे में समझ, और उसके बाद गांव में जाके राजस्थानी में लिखना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस थी। इसके साथ साथ वो उन्होंने और कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान बनाया। उसके पीछे उद्देश्य था कि जो चारण राजा महाराजाओं के गाथाएं गाते थे, उसको छोड़ के एक नया इतिहास, नया समाज के बारे में, जो गांवों में गरीब लोग हैं, जो इसको कहते हैं ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, उनका इतिहास, उनकी कहानियां। यही काम था रूपन संस्थान का, कि जो जैसे वनस्पति है, घास है, पानी है, पेड़ हैं, पक्षी हैं, खासकर राजस्थान में, क्योंकि अपनी इकोलॉजी अलग है, सूखा है, रेगिस्तान है, उससे बहुत जुड़ी हुई है। तो जो भाषा और जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसमें जो बहुत गहरा संबंध है, वो उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज करी और दुनिया को बताया। लोग जरा क्वेश्चन सब जस्ट 2 मिनट्स, Sure, जस्ट इसीलिए जैसे इतिहास में कहते हैं सबल्टन हिस्ट्री, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1970s में शुरू हुई, लेकिन इसका बीज उन्होंने रूपायन संस्थान में 50s में रख दिया। ये एक सर्च फॉर ऑथेंटिक वॉइस उनका हरदम जीवन में रहा। आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि जो एक हिरार्की बन गई है कि सबसे नीचे राजस्थानी, उसके ऊपर हिंदी, हिंदी के ऊपर अंग्रेजी, और अंग्रेजी के ऊपर अंग्रेजी एक एक्सेंट में बोलना, खासकर अमेरिका से आए हुए अमेरिकन एक्सेंट में, इस हिरार्की को तोड़ना होगा। और उनकी किताबें राजस्थानी से हिंदी में ट्रांसलेशन हुई, इंग्लिश में भी हुई, लेकिन मैंने पूरे जोधपुर को छान मारा, जयपुर को छान मारा, दिल्ली को छान मारा, कहीं उनकी पुस्तक नहीं मिली। एक जोधपुर की एक दुकान में मिली, सिर्फ साहित्य अकेडमी तक ही सीमित हो गई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि साहित्य अकेडमी वालों को उनके डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और कुछ पॉपुलर पब्लिशर से प्रमोट करना चाहिए। आखिर में उनको एक नमन के तरह से एक राजस्थानी में थोड़ी सी कविता करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई साथी कोनी तो घबराया, परवा मत करिया, नया पागल्या निशान जिया, नया अक्षर रो शाही मांड। मांड राजस्थानी में होता है मांडना, ड्राइंग करना, और एक डांस भी होता है, और इसको ब्रह्मांड से भी रिलेटेड है, कॉस्मोलॉजी से। नया पागल्या निशान जिया, नया अक्षर रो शाही मांड। बावड़ो जिसो ही सही, एकला एक हिली चाल बनाया, एक दिना जमघट लाग जासी। ये शेखावटी में मैं बोल रहा हूं। एक दिना जमघट लाग जासी, जात पात ऊंच नीच री परवा मत करिया, ई जगरी रीत लाज कम रखिया, एक दिना ओ जग बदल जासी। एक दिना ओ जग बदल जासी। Thank you, beautiful. Thank you very much. Biji was a very cosmopolitan person. He lived in a village, he chose to live in a village. I had the good fortune to meet him several times because even 20 years ago, he had said that it would be worthwhile translating the Rajasthani folklore stories into English. At that time, not too many people were willing to do that. But it's very fortunate that during his lifetime, he found numerous translators who did a wonderful job. But many people here would have seen the interview that he gave
a couple of months before he passed away, in which he bemoaned the fact that people were not reading books, he said. And he said that the language of the young people today is the mobile phone and the SMS. And towards the end of that interview, he actually addresses a hypothetical figure that he calls Akshar. And he says, Akshar, मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ और अक्षर मैं तुम लोगों से ही बात करते करते आगे जाना चाहता हूँ और अक्षर मैं चाहे और दुनिया का कोई मुझे नहीं समझे पर अक्षर तुम मुझे समझते रहना. So towards the end, his dedication was to the word, and he is very fortunate in the many friends that he found, and some of them are here today who have paid the tribute. We have about 10 minutes for very quick questions, but very quick means a short question so that members of the panel get an opportunity to give you a short answer. That way we can pick up a few more people. There is a mic available. Yeah, mic coming. Okay, let's start with. Here's the mic. Is there a mic here? Do you want to use this one? Yes, yes. Let's start with you. Yes, please. In the front row in the red jacket, please. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राजस्थानी इतनी हम यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि इतनी समृद्ध भाषा है, विजयदान देथा जैसे राइटर इसमें हुए हैं और भी इतने अच्छे अच्छे राइटर इसमें हुए हैं, तो आज ये भाषा मान्यता के लिए क्यों तरस रही है, इसके अस्तित्व पे क्यों खतरा बना हुआ है? देखिए, भाषा का जो सिलसिला है, भाषा को संविधान के अंदर हमारे भारतवर्ष में जब आज़ादी आई तब ज़रूरी ये था उस आज़ादी के उमंग में कि भारतवर्ष को एक भाषा चाहिए थी जो कि स्वाधीनता आंदोलन में वह रोल हिंदी ने अदा किया और हिंदी के लिए एक ऐसी अपील थी उस वक्त महात्मा गांधी से लगाकर उनके सारे के सारे फॉलोअर्स तक कि वो ये चाहते थे कि एक बार ये हिंदी इस तरह से आ जाए उसके बाद हम दूसरी भाषाओं को भी पनपने का मौका देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो दिन आया नहीं और हमारे जो राजनीतिक जो चुनिंदा हमारे जो राजनीतिक हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि वो कल्चर के इतने महत्वपूर्ण पार्ट को सबके लिए ज़रूरी समझे. 66 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता, लेकिन ये बराबर न केवल विजयदान देथा बल्कि कन्हैयालाल सेठिया से लगाकर 1944 से ये आंदोलन लगभग 100 साल होने को आए हैं और ये सारे लोगों की ये इच्छा थी कि उनके देखते देखते अपने कानों से ये सुन लें कि राजस्थानी को मान्यता मिल गई तो वो उनको मुगातर होगा, उनको मोक्ष मिलेगा. लेकिन दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक जो नेतृत्व है उस नेतृत्व का कच्चापन है सांस्कृतिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से उनका दिवालियापन है कि वो भाषा की महत्ता को नहीं समझ पाए और इस भाषा को अब तक जो उसका अधिकार था वो उसे नहीं मिला. हेलो, विशाखा शिव कुमार. माय क्वेश्चन इज कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप एक जने को सवाल पूछिए. किसको पूछ रहे हैं बताइए? जो भी आंसर नहीं, एक को चूज करिए. बोलो कोई बात नहीं, बोलिए. हाँ, क्या लगता है? कोई नहीं, सब अपने व्यूज दे सकते हैं. ठीक है. कि आपको क्या लगता है कि हमारे जनरेशन में ऐसा क्या लैकिंग है या फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है दैट कि हम वी डोंट फील दैट लव फॉर लिटरेचर. जैसे वो कह रहे थे कि मैं अक्षर के लिए जीता हूँ. So what do you think that what is something that will help us? हमारी लव आई थिंक थोड़ा सा हमें इस जनरेशन को, मैं पूरी जनरेशन का नहीं बोलूँगा कि उसमें ये कमी है, बट एक तरह से आपको लुभाया तो जा रहा है कल्चर, यूज़ एंड थ्रो वाले कल्चर से कि आप यूज़ करो और फेंक दो. तो हमारे जो पूरी वैल्यूज़ थी पुरानी, एक साइकिल की परंपरा है कि एक चीज़ की साइकिल होनी चाहिए, किसी चीज़, हर चीज़ की एक साइकिल है, वो हमें सिखाया जाता था, वो हमारे वैल्यूज़ में था, वो ख़त्म हो रहा है ज़रूर. और उससे ज़रूर जो है एक वेस्टर्न कल्चर से, एक कंज्यूमरिज्म से आदमी आकर्षित तो हो ही रहा है. तो उसकी वजह से बहुत सारे शॉर्टकट्स हम ढूंढते हैं आजकल ना, हर चीज़ के लिए शॉर्टकट चाहिए, हर चीज़ के लिए सिंगल डायमेंशनल चीज अप्रोच है. तो वो एक चीज़ है और आई थिंक धीरे धीरे जब आदमी ज़िंदगी जीता है तो चीज़ें समझ में आती हैं. तो अभी भी हिंदुस्तान की सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं और आप जैसे अगर समझदार लोग हैं तो आई थिंक दे विल ब्रिंग बैक एवरीथिंग. One of the things that is at a premium now is time, and that's what I think the young people are looking for, because the Rajasthani way of storytelling is sort of timelessness, and that tradition is unfortunately going out because everybody is looking at the clock as we are also, and that beautiful expanse of narrative
that was and is a part of the Rajasthan tradition is going out because of certain exigencies. But I think I want to go back to what Deval Saab said. I think despite all the history of non-recognition of the Rajasthani language officially, in spite of that, the Rajasthani language and culture has come into its own. There is a great deal of attention to its theatre, its music, its traditions, its folklore, and there is a huge resurgence of Rajasthani literature. There is a question from there. विजय जी कहते थे कि परंपराएं जो हैं उनको बगैर सोचे समझे खत्म नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि इनको बनने में सालों साल सैकड़ों साल लगते हैं और बिना सोचे समझे जो है उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। एक बार छूट गई तो खत्म हो गई। तो उसका ये मतलब नहीं है कि अंधे तरीके से मानते रहना चाहिए। उनका मतलब है सोच समझ के मानना चाहिए और सोच समझ के ही उससे कनेक्ट करना चाहिए। बेटा एक क्लॉड लेवी स्ट्रास ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा। उसने कहा कि मैं शेक्सपियर पैदा हो इसकी प्रतीक्षा कर सकता हूं कई वर्षों तक, लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो लोक में या लोकवांग्मय, लोकगीत, लोक कथा में या लोक कहावत है उसमें प्रचलित कोई एक पंक्ति भी गायब हो जाए स्मृति से, वो बहुत बड़ा घाटा है। मैं शेक्सपियर को जन्म लेने की प्रतीक्षा करता हूँ। इरफान साहब आदाब। सवाल मेरा आपसे है क्योंकि आप बॉलीवुड से हैं। बॉलीवुड से नहीं, मैं इसलिए माफी चाहूंगा, बॉलीवुड से नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने देथा साहब को जाना जब तक शाहरुख खान साहब ने फिल्म नहीं बनाई थी उसके ऊपर, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट उनके अंदर जागा। मैंने राही मासूम रजा को जाना, नीम का पेड़ जब तक सीरियल नहीं बना था उससे पहले शायद मैं नहीं जानता था। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज लिटरेचर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए? मिसाल के तौर पे टीवी जो है इस आज के दौर में बड़ा अच्छा माध्यम है, तो हमारे जो लिटरेचर जो है जो अभी तक सामने नहीं आया है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपके इंडस्ट्री की तरफ से कोई कदम उठना चाहिए। ऐसा है कि ये गलत बात है कि सिर्फ शाहरुख खान की वजह से विज्जी को माना गया। उसके पहले बहुत लोगों ने, मणिकौल ने बनाई थी और वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज हुई थी फिल्म। बिज्जी एक्चुअली बिज्जी को इन लोगों की जरूरत नहीं थी, लोगों को बिज्जी की जरूरत थी। बिज्जी एक ऐसा पारस पत्थर बन गए थे कि जिसको कि हर आदमी छू के कुछ पा लेना चाह रहा था, फिर वो चाहे श्याम बेनेगल हो, अमोल पालेकर हो, हबीब तनवीर हो, मणिकौल हो, सब लोग चाहते थे कुछ मिल जाएगा शायद। और आप बरुंदा जाएंगे तो मुझे लगता है आप जाके देखिए, वहाँ की हवा में कुछ ऐसा है कि आपको जरूर मिलेगा। और फिल्म मेकिंग जो है ना, वो एक तरह से कमर्शियल एक वेंचर है, उस पर आपके ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। समाज सेवा नहीं करती है फिल्म इंडस्ट्री, उसमें एक जागरूकता अगर है फिल्म इंडस्ट्री में तो वो जरूर। कौन सी बात हुई थी ताली? जागरूकता। तो अगर माहौल बनता है तो ऐसी शर्तें लादी नहीं जा सकती कि वो कमर्शियल एक इंडस्ट्री है, उसमें क्रिएटिविटी का योगदान है, दोनों का अपना कॉन्फ्लिक्ट है, सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का, लेकिन वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जैसे जागरूकता होती है, जब माहौल बनता है, जैसे अब माहौल बनने लगा है, तो रीजनल लैंग्वेजेस में लिटरेचर में फिल्में बनती रही हैं, हिंदी में भी बनती रही हैं, लेकिन वो दौर ख़त्म हो गया था, बीच में अकाल आ गया था, बहुत ही गंदी फिल्में बनती थी। अभी फिर से दौर शुरू हुआ है, अच्छा हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब शायद बनेंगे लिटरेचर पे ज़रूर। हम बनाना चाहते हैं लिटरेचर पे, एक इनके विषय में पढ़ा हूँ कि इनकी किताब मुझे मिल जाए तो मैं बनाना चाहूँगा ज़रूर। बहुत खूबसूरत एक किताब है, कई चांद है सरे आसमां। हाँ, वो इनके अंकल का, ब्यूटीफुल बुक, वो अंकल का है। या देखिए, विजयदान देथा अपनी तमाम उम्र में अपनी जो भी राइटिंग है उसमें आपको कहीं पर भी आधुनिकता से प्रभावित नहीं लगते। वो बहुत विदेशों में भी यात्रा कर चुके थे, लेकिन उनकी किसी भी कहानी में सिवाय बस या जीप या इनके अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि आज का जो समय, आधुनिकता के बाद का उत्तर आधुनिक समय, जिस उत्तर आधुनिक समय के पुरोधाओं ने एक घोषणा की थी कि इतिहास मर गया है और राइटर मर गया है, पाठ, द टेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो ये पाठ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बिज्जी इतना विविध रूपायण वो पाठ हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं कि इस पूरे उत्तर आधुनिक समय में यदि स्वतंत्र पाठ की ओर अगर पूरा का पूरा लोगों की सर्चिंग शुरू होगी
तो मेरा विनम्र दावा है कि विजयदान देता के अलावा पूरे भारतवर्ष में कोई भी लेखक उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर सकेगा, जिसके यहाँ सर्वाधिक फ्री टेक्स्ट, जो लेखक से फ्री टेक्स्ट है, वो उनके यहाँ उपलब्ध है। एक सवाल हम स्टेज से ले लें प्लीज। प्लीज वन क्विक क्वेश्चन। यस प्लीज। हेलो इरफान साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है। माय नेम इज़ राजदीप एंड मैं आपकी वजह से ही लिटरेचर के मैं जुड़ा हूँ, बुक्स पढ़ने की आदत हुई है मुझे। यू आर गॉड ऑफ एक्टिंग एंड यू आर माय गॉड बिकॉज आई एम आल्सो थिएटर आर्टिस्ट। जी जी। अच्छा सवाल पूछ लीजिए। सवाल सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक बुक पढ़ी थी सरे आसमां कई चांद थे ड्यूरिंग टाइम ऑफ लंच बॉक्स। तो सर उसको पढ़ने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको क्या फील हुआ? मुझे लगा वो अद्भुत किताब है। वो ऐसी किताबें लिखी नहीं जाती हैं। वो जिंदगी भर जब आदमी किसी एक चीज़ से लगाव रखता है और उसकी इबादत करता रहता है, तब जाके ऐसी कृति होती है। रचना जो कभी कभी होती है कई सालों में, सैकड़ों सालों में, वो उस तरह की किताब है। वो चकित करने वाली किताब है। वो आपको अलग अलग तरह से, हर तरह, वो कंप्लीट बुक है वो, जिसमें कि हर तरह के आयाम है। हिस्टोरिकल है बट इतनी फैसिनेटिंग उसमें कैरेक्टर्स हैं, और जिस तरह की उसमें कहानी का किस्सा कहने का तरीका है और जो डिटेलिंग है, वो उसको मैं शायद अपने शब्दों में उसका इंसाफ नहीं होगा अगर मैं उसको बयान करने की कोशिश करूं। वो किताब अद्भुत किताब है। वो आज से हज़ारों साल तक वो जिंदा रही किताब। जब तक मानव जाति इस धरती पे है वो किताब जिंदा रहेगी। वो उस तरह की किताब है। कभी वक्त मिले तो पढ़िएगा। और बिज्जी की एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ें, ये रचनाएं तभी होती हैं जबकि आपके अंदर एक आग होती है, आपके अंदर एक ऐसी इच्छा होती है, ऐसा ड्राइव होता है कि वो मारे नहीं मरता है। बिज्जी बोलते हैं जब हम बचपन में वो पढ़ते थे कृष्णचंद्र की किताब, तो साथ में पानी का लोटा रखते थे, रुमाल रखते थे, शरद चंद्र जी की किताब। तो आंसू पोंछते रहते थे और पढ़ते रहते थे, फिर आंख में आंसू आते थे, फिर धोते थे, फिर पोंछते थे, फिर पढ़ते थे। कितनी मासूम और कितनी खूबसूरत बात। मैं इरफान भाई की एक बात पर कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि परंपराओं को इतनी आसानी से ठुकराना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन परंपरा कई तरह की होती है, और राजस्थान में खासकर एक तो राजा महाराजाओं की संस्कृति है, इतिहास है, परंपरा है, जो चारण लोग जिसके गुण गाते हैं, और विजयदान जी खुद भी चारण थे। और दूसरी परंपरा है जो गरीब अनपढ़ गाँव में गरीब लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनकी लघु कथाएँ, उनके मुहावरे, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति। तो बिज्जी उस संस्कृति को उभारने में उनका एक योगदान है। और उस संस्कृति की खूबी एक ये भी है कि उसमें रिफॉर्म, उसमें बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि एक वो ओरल ट्रेडिशन है, उसको बांधा नहीं गया है लैंग्वेज में, एक स्क्रिप्ट में, एक रिटन लैंग्वेज में, एक चारण के तरीके में। बहुत सुंदर बातें आप लोगों ने सबने कही बिज्जी के नाम पे, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से हम लोगों के सबके तरफ से बिज्जी को हमारा नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू बहुत।